Hello students, how are you? I'm Vijay and we are going to discuss Unit 7, that is 7.6, treatment of injuries, and these are the treatment of soft tissue injury. Today we have discussed about the treatment of soft tissue injury. We will discuss the only soft tissue injury today, and first again we have to discuss about treatment, that is the abrasion. This is also, we know about the soft tissue injury. It's a part of soft tissue injury, and its injury appear on skin due to the friction, certain friction with the floor, we can say hard surface, yeah, any kind of equipment, of sports equipment, and it's very close to skin, as well as bone is very close to skin also, sometimes like elbow skin. Now let's discuss about the treatment. First of all, we should clean the affected part. Whatever the affected part, we must be clean with the fresh water and pick up the dead tissues. We can clean the dead tissues also, and then we have to go for the next step. We have to use, or we have to clean that part particular with the help of wipes, or we can say Listerine gauze, to use the affected part. After that, we have to apply ointment, any kind of ointment that is the helpful to protect that particular part. And this ointment, which is very helpful to proliferation of bacteria, does not take place when we have to apply the ointment, whatever the ointment of that particular part, that is antiseptic ointment. And after the applying ointment, any kind of बैक्टीरिया यानी जर्म्स जो हैं वो उस जगह नहीं रह सकते फिर. तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. एंड इफ़ वी हैव फील नीड टू विजिट द डॉक्टर, तो वी मस्ट बी विजिट द डॉक्टर. एंड वन मोर वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, to visit the doctor after that we must be change the dressing. We should be change the dressing time to time, and we can protect from the any kind of infection also. And whatever the instructions of doctor, we must be follow that, and then very easily player can cope up from the abrasion type of situation. And these treatment step are very important and they must be followed. Now come to the next, contusion. That is also a soft tissue injury, as well as it is a muscle injury. Already we know, because direct hit or without hit, indirect, any kind of a sports equipment can be hit, and it can occur, just like boxing, football, wrestling, kabaddi. These are the so many games, and the player they damage, and we can say they get injured from the contusion situation, and we have some treatment of contusion. These steps we should follow. Cold compression should be applied on that affected part immediately. Cold compression in the sense, we can say ice cap हो सकता है, या we can fold the ice cube in any kind of cloth. कोई भी कॉटन का हैंकी, कुछ भी ऐसा पतला कपड़ा लिया जा सकता है, प्लास्टिक ले सकते हैं, पॉलीथीन, और उसके ऊपर मीन्स वी कैन नॉट अप्लाई डायरेक्ट आइस ऑन द इफेक्टेड एरिया. जो इफेक्टेड पार्ट है, इफेक्टेड एरिया है, वी कैन नॉट अप्लाई डायरेक्ट आइस उस पर नहीं लगा सकते. तो हम किसी भी चीज़ में उसमें रख सकते हैं, आइस पैक बना सकते हैं. एंड नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ द आइस और cold water should not be used for more than 40 minutes. In serious cases or severe condition, we must be think कि we cannot apply more than 40 minutes. 40 minutes से ज़्यादा नहीं होना चाहिए.
and some treatment, whatever type of treatment, you know, but we have to see कि some treatment apply in same 5 or 6 day in a same day. ये जो हमारा ट्रीटमेंट था, सेम ट्रीटमेंट हमें अप्लाई करना 5-6 टाइम इन ए डे, एक दिन में 5 से 6 बार आइस पैक जो कोल्ड कंप्रेशन है वो अप्लाई करना है उस इफेक्टेड पार्ट पे. नेक्स्ट, इफ द स्वेलिंग स्टिल, देन वी हैव टू कंसर्न विद द डॉक्टर. अगर स्वेलिंग तभी भी बनी हुई है, स्टिफनेस है, तो मस्ट बी कंसर्न विद द डॉक्टर ऑल्सो, एंड वी हैव टू take the advice about the any kind of painkiller also with the help of medical officer. Without suggestion of doctor, we cannot give any kind of painkiller. Next, this is the laceration. Laceration also a part of the soft tissue injury, and laceration is an irregular cut in the skin from the any kind of objective or sports equipment, and it's cut sometime it's deep cut also, and sometime it's normal, the wound or more than dangerous if it is deep, and such type of wound are not smooth. ऐसे जो कट होते हैं, जो स्पेशली लेसरेशन की अगर हम बात करें, ये कभी भी स्मूथ कट नहीं होते. फॉर एग्जांपल, एनीबॉडी इंजर्ड विद द एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट. कैसे? सपोज कोई डिस्कस थ्रो कर रहा है और डिस्कस थ्रो के चारों तरफ जो रिंग लगी होती है, अगर वो कहीं से आयरन रिंग होती है, वो कहीं से निकली है समथिंग कहीं, तो जब रिलीज़ करते हैं तो कट हो सकता है. या किसी भी टाइप का कोई इक्विपमेंट, शार्प इक्विपमेंट से फट जाना स्किन का, तो इट इज़ नॉट ए स्मूथ वॉर्म. ये एक बहुत ही हार्श वॉर्म है. इवन समटाइम इट्स डिपेंड ऑन द ब्लीडिंग इज लेस. जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो कट होता है वो काफ़ी होता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ लैसरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड try to control bleeding. This is the first step of this treatment. सबसे पहले हमें ट्राई करना है जो लैसरेशन है, जो कट हुआ है, उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के ऊपर काम करना है. मीन्स वी हैव टू कंट्रोल द ब्लीडिंग. नेक्स्ट, वी हैव टू वॉश लैसरेशन विद द वार्म वाटर. दैट पर्टिकुलर कट वी हैव टू वॉश विद द वार्म वाटर. नेक्स्ट, if laceration required stitch, then go to the doctor. If it is simple laceration, then we have to apply any kind of antiseptic ointment, and dressing should be changed time to time. Means we have to change the dressing time to time, and we can protect from that particular one, from the infection especially. If the person feel pain, then take the advice of doctor about the painkiller, and take the painkiller also. These are some important steps to treating the laceration, that is the cut of any kind of sports equipment or sharp object also. Next point, this is the incision. Incision also a injury, that is the injury incision may occur due to the sharp object of sports equipment or spikes. It can occur with the spikes also. Sharp object, any kind of sports object, that is the high jump bar, yeah, we can say like spikes, any kind of equipment, gymnastic equipment are there, athletic equipment, hurdles and all, बहुत सारे होते हैं. तो इनमें से किसी से भी चोट लग सकती है. And sometime it's damage the arteries or veins also, and may be cut, and bleeding also usually come out in these type of injuries. And how we can treat the incision
type of injury, and we have some step of treatment also. If the wound is not deep, then let the come out blood. अगर ज़्यादा डीप नहीं है चोट जो कट है तो ब्लड को आने देना चाहिए, बिकॉज वॉट काइंड ऑफ हेल्प इन दिस स्टेप हमें क्या करेगा, हेल्प ब्लड बाहर आएगा, देन इट इज़ ए प्रोसेस टू जर्म्स ऑल्सो कम आउट विद द ब्लड. जो जर्म्स हैं, जो इन्फेक्टेड एरिया है जहाँ इंजरी हुई है उसमें अगर कोई जर्म्स है तो वो जो ब्लड बाहर आया उसके साथ साथ जर्म्स भी बाहर आ जाएंगे. तो अगर डीप कट नहीं है तो ब्लड को बाहर आने दें. सपोज इट इज़ डीप कट, देन वी हैव टू फर्स्ट कंट्रोल द ब्लीडिंग. वी कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑन द सेम टाइम एंड वी हैव टू टेक द डिसीजन कि क्या करना है हमें. दिस टाइप ऑफ फॉर्म क्लीन विद द आयोडीन टिंचर और स्प्रेट, बिकॉज इसको हम क्लीन नहीं कर सकते किसी भी पर्टिकुलर उससे, कॉटन से या कुछ, इट्स वेरी पेनफुल. तो आयोडीन टिंचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और स्प्रेड. नेक्स्ट वी मस्ट बी अप्लाई बैंडेज एंड इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज if we cannot cover the worm, then there is infection chances also create. So we should be covered with the help of bandage that affected area or part, and in this way we can protect the injured area. And this is very important. To time we have to dressing that injured part, and if we feel then we must be visit the doctor also and consult with the doctor. If it is any kind of infection is going and uneasiness feel the injured person, then must be take the advice of the doctor. See, next two injuries, sprain or strain. स्प्रेन दैट इज़ दी मोच, जो मोच होती है जो कि हमारी लिगामेंट इंजरी है, और स्ट्रेन दैट इज़, स्ट्रेन मीन्स खिंचाव, जो हमारी मसल इंजरी है. ये दो इंजरी हैं, बट इन दो इंजरी में जो एक कॉमन चीज़ है दैट इज़ दी ट्रीटमेंट. स्प्रेन ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन. दिस इज़ द प्राइज एंड माइस. Two treatment here. This is one is the price. Price treatment is common for the strain as well as sprain, and mice to apply for sprain only. So let's discuss about the price. What is price and how it's work? What is the step of price? Price, the procedure of price should be followed for first 24 to 28 hours. The price treatment या price procedure we can follow only in the injury when person injured to till 48 or 24 hour. सिर्फ 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में इस ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है, जो प्राइस ट्रीटमेंट है. नाउ व्हाट इज प्राइस? The price, first that protection, P for protection, R for rest, I for ice, C for compression, and E for elevation. Then these 5 steps, the part of price. And how it's work in procedure. First the point, that is the procedure we have to protection procedure. Protection the injured area, particular the injured area we have to protect, and by using the support, any kind of cloth, whatever the support we have to use on the spot, we have to use that particular support. कैसे सपोर्ट का यूज़ करेंगे अब यहाँ हम, बिकॉज हम इसमें भी काम कर रहे हैं,
स्प्रेन की बात कर रहे हैं, सपोज एनीबॉडी गॉट हार्ट स्प्रेन, अब स्प्रेन इंजरी हो गई, किसी को मोच आ गई है, तो व्हाट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन वी हैव टू प्रोवाइड। तो प्रोटेक्ट करना पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, यानी उस जो लिम्ब जो इंजर्ड हुआ है पर्टिकुलर पार्ट, वो जो पर्टिकुलर पार्ट है उस पर हमें प्रेशर नहीं डालना है, यानी हमें वहाँ सपोर्ट देना है, आराम से उससे देखे चलना है, ठीक। अब जब हमें उस पर प्रेशर नहीं डालना है तो उसी पर्टिकुलर पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सपोर्ट दी जा रही है वो किसी भी तरीके की हो सकती है, उस सपोर्ट को वो वैसे ही फिल करेंगे। नाउ नेक्स्ट, रेस्ट, we must be provide the rest for particular affected part. It is very important or very beneficial, those person got hurt and injured the player, they must be take rest, and in rest situation they will be heal up very quickly. जो चोट है, जो इंजरी है, वो जल्दी heal up हो सकती है रेस्ट के बेसिस पे, एंड इफ़ वी कैन अवॉइड द रेस्ट देन इट कैन नॉट बी हील अप टाइमली, और वी कैन नॉट कवर द इंजरी टाइमली, जल्दी से हम उसको कवर नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ रेस्ट। जो ट्रीटमेंट लिया उसके बाद हमें रेस्ट देना है। वी हैव टू रिड्यूस द एक्सरसाइज वर्क ऑल्सो, एक्टिविटी वी हैव टू अवॉइड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। उस टाइम में हमें रेस्ट ही करना है, किसी भी तरीके की कोई एक्सरसाइज, एक्टिविटी या स्ट्रेचिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट, आइस। थर्ड थिंग, आइस शुड बी अप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर इंजर्ड और इफेक्टेड एरिया ऑन द सेम टाइम, आइस पैक, and it is very helpful to reduce the bleeding as well as to reduce the swelling also, and it's slowing it's helpful for the blood circulation also. And ice also apply minimum 3-4 times in a day, and minimum 5 minutes we can apply on the small area, and if we have injury in large area so we have to apply for 20 minutes. That is the depend on the injury कि कितनी बड़ी चोट है हमारी, उसी के अकॉर्डिंग करना, और मिनिमम एक दिन में 4 से 5 बार, और ज़्यादा इंजरी है तो 8-10 बार भी उसको दिन में अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स वी हैव टू रिपीट द सेम ट्रीटमेंट इन ए डे, एक दिन में कई बार आप आइस पैक प्रोवाइड करें। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ। Next, the compression. Compression is an injury that is related to ankle injury, knee injury, as well as wrist injury. Means it is related to bone injury. Main thing is that, and it is reduce the swelling as well as it is control the bleeding. Sometime bleeding also occur with the sprain. जो sprain है उसके साथ साथ कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो इट इज़ हेल्पफुल टू कंट्रोलिंग द ब्लीडिंग ऑल्सो। एंड वन मोर थिंग, इट इज़ द अप्लाई टू यूजिंग एनी काइंड ऑफ पैड एंड सपोर्ट टू साइड द इंजरी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्क्रैप होल्ड इट इज़ दैट पर्टिकुलर प्लेस, जो चोट लगी है जहाँ, उस पर्टिकुलर पार्ट को होल्ड करना। और कंप्रेशन शुड बी नॉट अप्लाई राउंड, जो कंप्रेशन है, जो पट्टी लगा रहे हैं, बैंडेज है जो बेसिकली, उसको राउंड राउंड गोल गोल नहीं बांधना होता है बेसिकली। उसको बांधने के लिए हमें ऐसे ऐसे एक ऐसे ऐसे इधर से ये क्रॉस करना होता है। मीन्स वी कैन नॉट अप्लाई इन दिस में, हम इसको ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड वी मस्ट बी चेक, वी कैन नॉट टाई इन टाइट नहीं करना उसको, टाई इतनी ज़ोर से नहीं करना, होल्ड नहीं करना होता है, आराम से उसको करना होता है जो कंप्रेशन है। एंड वी शुड अप्लाई इन वेरी इजीली, बहुत हार्ड नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट, एलिवेशन। एलिवेट टू पर्टिकुलर इंजर्ड पार्ट इफ इट इज़ पॉसिबल, दैट पर्टिकुलर इंजरी, एंकल, एल्बो or wrist, knee, elevate on the pillow, quilt we can say, and
to just labeling the heart to reduce the swelling. जो पार्ट है जिस पे चोट लगी है, चाहे एंकल है, वो लेग पार्ट है या हैंड पार्ट है, रिस्ट है, कुछ भी, तो उसे एलिवेट करने के लिए यानी उसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पिलो की हेल्प ले सकते हैं, पिलो के ऊपर रख सकते हैं या कुल्ट के ऊपर रख सकते हैं, या समटाइम वी कैन सी जैसे फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या पैर को हैंग करके रखते हैं लटका के हार्ट लेवल पे, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चलता रहे रेगुलर उस पर्टिकुलर पार्ट में और स्वेलिंग जो है वो रिड्यूस हो जाए, घट जाए स्वेलिंग, इसलिए उस पर्टिकुलर पार्ट को एलिवेट किया जाता है. तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ प्राइज and it is very helpful for soft tissue injury, and if this step used by the injured person, then very easily he can come out from the injury situation, or that is the particular part heal up very easily. Next, mice. Now mice, we just apply mice on sprain, जो हमारा पहले वाला था. प्राइज और माइस हम दोनों स्प्रेन पे यूज करते हैं, बट हियर वी कैन डिस्कस अबाउट दी स्ट्रेन. तो स्ट्रेन पे हम सिर्फ प्राइज का यूज करते हैं. तो अब एक बार माइस और डिस्कस कर लेते हैं. प्राइज तो ऑलवेज वी नो सेम सिचुएशन है प्राइज की. नाउ कम टू दी माइस. माइस जो सबसे पहली जो प्रोसीजर है माइस का, बेसिकली वो क्या है, दोनों का यूज़ क्या है मैं ये बताती हूँ, प्राइज और माइस का. प्राइज का तो इमीडिएट चोट लगने के बाद की बात होती है कि तब हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम प्राइज की यूज़ करते हैं वंस द इंजरी वी गोट हर्ट और हर्ट एज वेल एज द रेडीनेस इज रिड्यूस, यानी जो चोट लग गई है उसमें लगने के बाद में कुछ रेडीनेस रेडिश टाइप का है और वो रिड्यूस हो गया, यानी वो घट गया है एक तरीके से. सबसे जो पहली और बेसिक चीज़ है इस माइस की, उसको यूज़ करना. अब दूसरा कब, जब चोट लगने के बाद की है, यानी उससे ठीक होने की तरफ चल रही है, तो माइस प्रोसेस का यूज़ करते हैं. माइस प्रोसेस का यूज़ हम कब तक करेंगे, इसमें जो प्रोसेस है शुड बी फॉलो अंटिल द इंजरी हिल अप. जब आपकी इंजरी पूरी, जब तक हिल अप नहीं हो जाती, जब तक इंजरी जो इंजर्ड पार्ट है बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता ना, वी शुड यूज़ दी माइस स्टेज. माइस स्टेज का यूज़ करेंगे. माइस में क्या आएगा, सबसे पहला जो है हमारा मोबिलाइजेशन, सेकंड आइस, थर्ड कंप्रेशन एंड फोर्थ एलिवेशन. ये 4 स्टेप हैं जो माइस की प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं. एंड नाउ हाउ these procedure take place. Mice first step, that is the mobilization to move the particular limb, yani it is the started or helpful to injured part through the full range of movement. जो सबसे पहली चीज़ है, माइस जो हमारी हेल्प कर रहा है वो क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर इंजर्ड पार्ट की जो रेंज है उसकी मूवमेंट को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है. Such movement should be avoid that cause pain. अब एक और चीज़ है, ये हमें सिर्फ कहाँ अवॉइड करना है इन मूवमेंट्स को, जो पेन का कारण ना बने, मतलब इतनी मूवमेंट नहीं देनी है. वी हैव टू मोबिलाइज दैट पर्टिकुलर लिम्ब और पार्ट, बट इफ़ वी फील पेन देन वी हैव टू अवॉइड. उस सिचुएशन में उसको अवॉइड कर सकते हैं. इट विल बी प्रिवेंट रिस्ट इंजरी और any kind of lack of muscle problem is there, then we have to avoid. तब हमें उसको avoid करना है. और जो movement है, it is very easy movement, we have to try to increase the range. पहले हमें ये कोशिश करनी है कि जो easy movement हैं उनको increase करने की कोशिश करनी है. easy movements we have to provide to particular injured limb. जो injured limb है उसको हमें particular soft, बहुत ही soft manner में deal करना है और ईजी मूवमेंट्स प्रोवाइड करानी है. तो ये क्या है, चोट तो लग चुकी है, अब चोट लगी तो उस लिम्ब को वापस उसकी प्रीवियस पोजीशन में लेके आने के लिए मूवमेंट्स तो ज़रूरी हैं. तो वी हैव टू
perform easy movement in the beginning. Now come to the next ice situation. So we have to apply the ice approximately 4 to 5 days. We have to apply. That is the treatment which is ice should be continue for about a week. We have to apply on injured part. Regular उस पर हमें apply करना है. Next, whatever the injured part, we have to apply the ice with the help of pad. जो हम ice जो है, ice को हम direct apply नहीं करेंगे, किसी चीज़ में fold करके उसमें देना है. And we have to apply the hot pad also. जो hot pad है यानी हमें आइस भी अप्लाई करना है और उसके साथ साथ हॉट पैड भी अप्लाई करना है. ये दोनों ट्रीटमेंट हमें अप्लाई करने हैं. इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू increasing the blood circulation on that particular affected area. We have to apply the ice also, but we have to apply the hot pack also. जो hot pack है वो भी हमें इसमें अप्लाई करना है. तो hot pack या we can say hot pad भी हॉट पैड कह सकते हैं. गरम कपड़े को गरम करके, कॉटन का कपड़ा उसको गरम करके पहले हमने अप्लाई किया आइस अप्लाई करने के बाद में इफेक्टेड एरिया पे हॉट पैक जिसको हम बोल रहे हैं हॉट पैड, गरम कपड़ा करके उसकी सिकाई करना है. यानी जो आइस से जो मसल का ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था, एक तरीके से ब्लड जम गया था, गरम कपड़े की हेल्प से वापस ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू हो जाएगी. और जो सुन्न है जहाँ सेंसेशन खत्म हो गया था, वापस जो पार्ट है वो लिम एक्टिव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ हॉट पैड. नाउ कम टू दी next the compression. And now compression, when we apply the compression it's depend on the we should apply compression for few days. क्योंकि अब उसको हम जो पट्टी है बैंडेज उसको हम क्यों बांध रहे हैं, टाई कर रहे हैं हम उसको दबाव बनाने के लिए, तो हम उसके ऊपर कंप्रेशन कर रहे हैं. अब जो कंप्रेशन है उसका जो मेन पर्पस है कुछ दिन के लिए ही है बेसिकली, उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट माइस में नहीं होती. तो कुछ दिन के बाद वीक और 10 days के बाद वी हैव टू अवॉइड द कंप्रेशन. नाउ कम टू द एलिवेशन. एलिवेशन शुड बी डन अंटिल द स्वेलिंग. जब तक हमारी स्वेलिंग है, जब तक उस पर्टिकुलर पार्ट पे स्वेलिंग है, वी हैव टू फॉलो द एलिवेशन. यानी जो बैलेंस है, जो ऊंचाई है, हाइट उस लिम्ब की, हार्ट लेवल की हम रखेंगे जब तक हमें उसकी स्वेलिंग खत्म नहीं होती या वो रेडीनेस जो है उसकी रेडिश है जो उस पर्टिकुलर पार्ट की जब तक खत्म नहीं होती, तब तक वी हैव टू एलिवेट दैट पर्टिकुलर पार्ट विद द हेल्प ऑफ पिलो और विद द हेल्प ऑफ कुल्ट. वी हैव टू एलिवेट दैट पर्टिकुलर लिम्ब. तो दीज आर द स्टेप ऑफ माइस and these very effective steps, and when we have to apply and why we can apply, we now understand all these treatment procedure. And one more thing, yes, in strain we are using the price procedure in strain problem. In strain injury, then we must be remember that about the elevation. This is the elevation activity. We must be apply 72 hours after a muscle injury. अगर muscle injury हुए हमें 72 hours भी हो गए हैं, and injury should be avoid, especially अगर बहुत कुछ hurt नहीं हो रहा है या वी कैन से उसमें कोई किसी भी तरीके की हॉट पैक एंड ऑल इस टाइप की चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, बट वी हैव टू अवॉइड द रनिंग एक्सरसाइज. वो कौन सा रीज़न है किसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, बट वी हैव टू अप्लाई द जेंटल मसाज ऑल्सो, एंड वी जस्ट अप्लाई एलिवेशन फॉर 24 आवर्स. उसके बाद ही हमें करना है. उसके 24 आवर के पहले एलिवेशन हमें अप्लाई नहीं करना है इसमें.
वी हैव टू यूज़ द पिलो एंड ऑल, वो तो हमें रखना है उसमें, बट वी शुड रिमेंबर कि इसमें सबसे पहले जो हमें अप्लाई करना है 72 आवर्स का गैप होना चाहिए स्ट्रेन में, और जो स्प्रेन पोजीशन है उसमें हमें बिगनिंग में ही एलिवेशन स्टेप का यूज़ करना है। ये दो चेंजेस हैं हमारे सिर्फ एक्टिविटी में कि हमें कब करना है इसको। नाउ टुमारो वी विल complete this chapter and rest of topic we will continue tomorrow only. Thank you class.